सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई वाज टेलिंग यू, वो जो लेक्चर है बीच में ब्रेक हो गया था, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट माइंड। सो प्रीवियस लेक्चर मेरा जो एंड हुआ था, मैं ये बता रहा था that if there is a DC signal, this is the first function, and if the second function is a sinusoidal type of function, ठीक है, this may be sin function or cos function, ठीक है, sinusoidal, either a sin or a cosine, ठीक है। so suppose आप इसमें क्या करते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी सिग्नल में DC वैल्यू ऐड करते हो तो उसका पीरियड वही रहेगा, ठीक है। सो कोसाइन और साइन फंक्शन में भी आप अगर 10 को ऐड करते हो सो वही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। अगर ये पीरियड है T0 देन T0 ही रहेगा। बट आप अब प्रोडक्ट कर रहे हो टू चेक ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। हम ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट देखना होगा। नाउ आपने 10 की इस पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई की, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, सो एवरी एम्पलीट्यूड गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 10 द शेप वुड कम साइनोसॉइडल, बट इससे थोड़ा सा बिगर शेप आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर एरिया, सपोज दिस इज़ +10, ठीक है। नाउ these amplitudes are again repeating in the negative direction. क्यों? Because this shape and this shape is similar. That's why when this positive and this negative gets multiplied, all these amplitudes are multiplied in negative direction in a similar manner, ठीक है। इस तरह से +10 getting multiplied by this shape gives this shape on a similar way, on a similar note. This 10 getting multiplied by this shape would give this shape which is similar to this shape. बस दोनों क्या हैं? दोनों नेगेटिव हैं। फ्लिप करूँगा तो दोनों सेम शेप आएंगी। नाउ सो आपने क्या देखा? दोनों शेप सेम है, मल्टीप्लाई हुआ, बस 10 से मल्टीप्लाई हुआ, दैट मीन्स ये शेप सिमिलर है, दैट मीन्स ये एरिया सिमिलर है, बट ये एरिया नेगेटिव है। सो व्हाट इज़ द टोटल एरिया? 0। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन, ये क्या है? T0। सो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट dt ओवर T0 ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज़ दिस? DC। व्हाट इज़ दिस? साइनोसॉइड। दैट मीन्स व्हाट इज़ द प्रोडक्ट integration of product is 0, that means orthogonal. So that means conclusion is DC and sinusoids means sin and cos are orthogonal, ठीक है। Now suppose question number 1 is this, question number 2 is this. In question number 1, zt is equals to this function plus this function, that is this DC, this is DC and this is sine function. DC and sinusoids are orthogonal. That's why power of z is equals to power of this. This is a DC signal. What is the power of a DC signal? DC square. Plus what is the power of a sinusoidal function? Peak square divided by 2. That means 2 square 4 plus 16 by 2, that is आपका 12, ठीक है। Now second question, what is the power of this? This is DC, this is sinusoidal function. DC and sinusoids are orthogonal, that's why power gets added. That's why PZ is equals to power of this, that is 2 square. माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस would come out as plus in the power calculation. That's why power of this plus power of this, which is peak square divided by 2, that means 4 plus 9 divided by 2, that means 4 to 8, 9, 17 by, ठीक है। now अब ये क्वेश्चन आएगा व्हाट पावर ऑफ ZT, ठीक है। दिस इज DC cos sin, so these are sinusoids, ठीक है। now all the signals must be mutually orthogonal. That means this DC and this is sinusoid. So this is orthogonal with respect to this as well as this as well as this. This is 2 pi, this is 3 pi, this is 7 pi.
omega 1 not equals to omega 2 not equals to omega 3, that means this and this having different frequency. ठीक है, that means this and this are mutually orthogonal. ठीक है, that means all the four functions are orthogonal mutually with respect to each other. ठीक है, that means power gets added. What is the power of this? 2 square. What is the power of this? 3 square by 2 peak square by 2 plus what is the power of this? Peak square divided by 2. What is the power of this? Peak square divided by 2. Why power gets added? Because all are orthogonal mutually. ठीक है, so this is the final answer. Now अब आपका एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने प्रीवियसली स्किप कर दिया था, मतलब स्किप नहीं किया था, वो टॉपिक मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो वो क्या था? फॉर एग्जांपल ZT इज इक्वल्स टू, सपोज दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पावर ऑफ ZT. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 3 पाई. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 3 पाई. व्हाट इज these two frequencies are equal, that means omega 1 is equals to omega 2. what is the phase? 0. what is the phase? मैं फेजर से चेक करता हूँ. this is sine and this is cos. x1 is like this, x2 is leading by pi by 3, that means 60 degree. so leading cos by 60 degree, that means the angle is this. this is x2. so is angle equal to 90 degree? not equal to 90, that means not orthogonal. so how do we calculate the power of ZT? ठीक है, ऑर्थोगोनल होते तो हमें पता था पावर गेट्स एडेड. ठीक है, बट अगर ऑर्थोगोनल नहीं है, व्हाट डू वी डू टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ZT? सो वो मैं बताना चाहता हूँ. सो वो बताने के लिए क्या करना है आपको? ये साइन में है, ठीक है, दिस इज इन साइन, दिस इज इन कॉस. either convert both of them in sine or convert both of them in cos. so I am converting this into cos, this into sine. so मैं कैसे इसको साइन में कन्वर्ट करूँगा ये आपको देखना होगा. ठीक है, सो फिर से वही फेज़र आपको बनाना है. दिस इज साइन एंड cos leads साइन बाय 90 डिग्रीज. ठीक है, इसको आपको इस तरह से देखना, +3 बड़ा ब्रैकेट cos ऑफ, एज्यूम दिस टोटल एज थीटा. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू साइन. ठीक है, नाउ 3 cos ऑफ थीटा. सो cos ऑफ थीटा यहाँ पर है. ठीक है, आपको यहाँ पहुँचना है. दिस इज़ योर डेस्टिनेशन. ठीक है, कॉस पर पहुँचना है. बनाना क्या है? साइन. ठीक है, तो साइन इज़ योर सोर्स जहाँ से आप चलोगे. सो इस तरह से ध्यान रखना. ठीक है, नाउ साइन थीटा प्लस व्हाट इज़ कॉस ऑफ थीटा. साइन थीटा को लीड करवाओगे 90 से, देन बिकम्स कॉस ऑफ थीटा. सो साइन थीटा प्लस 90, दैट मीन्स साइन थीटा को 90 लीड करवाया, देन इसको 90 शिफ्ट करोगे, देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन विच इज़ कॉस. ठीक है, दैट मीन्स यू कैन राइट दिस एज 3 साइन थीटा. थीटा क्या है? 3 पाई t प्लस पाई बाई 2. ये पाई बाई 3 भी आएगा ना थीटा के साथ, प्लस पाई बाई 3. ठीक है, नाउ दोनों साइन में कन्वर्ट हो गए. ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, ये 2 है, ये 3 है. ठीक है, नाउ दोनों साइन में है ना. उसके बाद क्या करना होता है? यू कैन कन्वर्ट दिस इन दिस फॉर्म, a नॉट साइन ओमेगा टी. ओमेगा क्या कॉमन है? 3 पाई टी प्लस समथिंग एंगल थीटा. ठीक है, ये थीटा, ये वाला थीटा नहीं है. ठीक है, सो
आप इसको इस फॉर्म में एक साइनोसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से, ए नॉट का जो फॉर्मूला होगा आप देखना किस तरह से मैं लिख रहा हूँ। ये क्या है 90 एंड दिस इज 60, 90 प्लस 60 इज 150। सो इसको ख़त्म करना, ठीक है। नाउ ए नॉट किस तरह से लिखना होगा, ए नॉट इज अंडर रूट, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन। सो कैसे लिखना होगा, ए नॉट को लिखना है सबसे पहले, ठीक है। सो दिस इज योर ए नॉट, ठीक है। ए नॉट इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ठीक है, प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 150 डिग्री, ठीक है। दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू साइन 3 पाई टी प्लस थीटा। इस थीटा से आपको कोई मतलब नहीं है बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट द पावर, ठीक है। सो ये कितना आएगा, ये कैलकुलेट करोगे आप, इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.61 अप्रोक्स, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज ए नॉट एंड दिस इज साइन फंक्शन, सो दिस इज पीक, ठीक है। दैट मीन्स 1.61 स्क्वायर, पीक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर पावर ऑफ z, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि इफ़ देर इज़ अ साइन फंक्शन एंड देर इज़ अ कॉस फंक्शन having same frequency but unequal phase, then you have to convert both of the function into either cos or either sin, both of them, ठीक है। सो मैंने इस केस में दोनों को cos में कन्वर्ट कर लिया, ये sin में ऑलरेडी है, इसको मैंने sin में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसको sin में कन्वर्ट कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया फेज़र की टर्म्स में। ये sin है, ये आपका सोर्स है, ठीक है, और डेस्टिनेशन इज कॉस, ठीक है। आपको ये आपका डेस्टिनेशन है, आपको डेस्टिनेशन को सोर्स में बदलना है, ठीक है। इस तरह से सोचना होगा। सो साइन ऑफ थीटा प्लस वॉट गिव्स यू कॉस ऑफ थीटा, ये थीटा मान लेना, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। फिर ए नॉट क्या बताया मैंने, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम की वजह से आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ा साइन में, ठीक है। ये साइन एंड ये कॉस है, सो एंगल बिटवीन देम इज़ नॉट π/3, ठीक है। एंगल बिटवीन देम इज़ 150। सो इन टर्म्स ऑफ पावर यू हैव सीन if the signals are orthogonal then power gets added. That means I have told you like this, x1t plus x2t. Suppose these are orthogonal, ठीक है। That means px1 plus px2 and this is pz, ठीक है। That means RMS of z whole square is equals to RMS of x1 whole square plus RMS of x2 whole square, and if there are other signals as well then RMS of x3 whole square plus dot dot dot, ठीक है। That means if the signals are orthogonal only in that case, ठीक है। That means RMS value of z is equals to under root of total, ठीक है, इस तरह से। सो ये डायरेक्टली इस तरह से भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बस। मैंने आपको बताया था अगर आपको RMS भी कैलकुलेट करना है, इवन इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द RMS वैल्यू देन ऑल्सो फर्स्ट डील इन पावर देन कन्वर्ट इनटू RMS, ठीक है। सबसे पहले पावर निकालो, फिर उसके बाद RMS आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू RMS स्क्वायर।
सो अगर पावर आपने निकाल ली बट आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए, देन अंडर रूट पावर कर दो, आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो ये बात है। एक और चीज़ वो क्या है, जो मैंने आपको ए नॉट का फॉर्मूला बताया था, ए दिस स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम का अंडर रूट, वो इस तरह से भी आप कर सकते हो। सपोज दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सो दिस इज़ साइन, सो साइन एंड दिस इज़ कॉस। ठीक है, सो साइन है, सो फेज 0 है तो साइन इस तरह से आएगा। सो दिस इज़ 2 साइन 3 पाई टी, दिस इज़ 3 कॉस 3 पाई टी प्लस π/3, दैट मीन्स 60 डिग्री लीडिंग द कॉस। ठीक है, सो ये कितना हो गया 60। ठीक है, नाउ ये क्या हुआ आपका, सॉरी 3 कॉस ऑफ दिस। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द टू सिग्नल्स, 90 प्लस 60 डेट इज़ 150 डिग्री। इस 150 की वजह से ही तो आपको कन्वर्ट करना पड़ा था ना इसको साइन में। ठीक है, सो काम हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, दिस सिग्नल इज इक्वल्स टू, अब ये जो एंगल है ये आप कहाँ से देख रहे हो, साइन से देख रहे हो। ठीक है, फ्रॉम द साइन एक्सिस। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, दिस बिकम्स ए नॉट, साइन और कॉस कुछ भी हो सकता है, एंगल बिटवीन देम तो यही होगा ना, चाहे साइन से देखो चाहे कॉस से देखो, कहीं से भी देखो, दोनों के बीच का एंगल, साइन एंड कॉस से मतलब ही नहीं है। ठीक है, दोनों फेजर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 90 प्लस 60 दैट इज़ 150। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो ए नॉट है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन और कॉस किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं डिपेंडिंग, बट हम थीटा नहीं निकाल रहे अभी। थीटा मीन्स 3 पाई टी प्लस थीटा, ये थीटा नहीं निकाल रहे, ये थीटा साइन एंड कॉस के केस में डिफरेंट आएगा। ठीक है, बट हमें पावर कैलकुलेशन में थीटा से मतलब नहीं है, हमें ए नॉट से मतलब है। ठीक है, सो ये जो ए नॉट होगा अब इस तरह से आप लिख सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट द एंगल बिटवीन द टू फेजर्स, इसलिए आप डायरेक्टली अब लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस सॉरी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम डेट इज़ 150 डिग्री, ये आपका होगा क्या 1.61। सो दिस इज़ पीक स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू पावर, ये आपका पावर होगा। आरएमएस चाहिए, देन अंडर रूट ऑफ दिस इज़ योर पावर। ठीक है।